Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. In our last lecture, we discussed about SQL statements, and I gave you some overview of different statements. Either they were data definition language or they were dealing with data manipulation language, just to give some sort of interview and to enable you that you may create some tables and try to do some sort of queries with the help of select statement. Further on Friday, we did a workshop on that, and online you tried some statements, how they should be executed using SQL Server, and you have also seen their outputs. Within that, we prepared some assignments that should be carried out by the students at that moment. So some of the students did that, and some of the students they have to join another class. So I requested them that they should do at their homes. The today's lecture also, this is the continuity of the previous lecture. We have to study SQL statements. At the outset, I have to let you know about the statement that you have already done, that is a bit repetition or revision. Further, we have to learn about the select statement. I already told you the select statement is very powerful statement, and the data queries that we have to do with the help of the SQL statements. So is the screen in front of you, please? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, in the very beginning, we have to discuss a bit about that is SQL identifiers. That you tried these things, but I just to revise that, because whenever you create a table, surely you will give it a name. Similarly, when you have a structure for the table and you say such data elements or fields or attributes, those are the characteristics of that entity, you have to define those, you have to give those names. So there are some convention how you can make these names, whether it is a table name, it is a column name. So one of the word here is written view name. We have also studied views. Those are not physically exist as tables or databases, but they logically exist. We have to learn in next lectures. So simple is that there is a character set that basically SQL use, that is A to Z. Those are capital letters or small letters, and 0 to 9 digits, and a underscore. These are the common characters that is called character set that we use in order to name a table or name a column, so and so. So identifier naming convention, the following restrictions are imposed. What are those restrictions? An identifier can no longer be 128 characters, but it may differ from SQL dialect to dialect. Dialect means because there might be different dialects of a language. For example, we were using in the very beginning basic language, that was turbo basic with us, MS basic, basic Q or Q basic, basic N. Like these are the dialects, all they follow the rules of the language that was basic, but with minimum further extensions. Similarly, you have SQL Server, you have
SQL itself, you have Oracle, you have Informax. In different your database management systems, might be these restrictions are different. Might be what you are using, the length of the name might be less than that 128 characters. But the normal, we say there should be some sort of limit of number of characters that you may give to any name of the attribute or name of the table. An identifier must start with the letter. The name you are coining, that must not start with a digit. It must start with the, and further, an identifier can't contain spaces. That there should be no spaces when you name any table. For example, you say the name of the table is employee and you say EMP, then you have give some sort of spaces, then the other spelling, then this name is wrong. There is not permitted that you have to embed spaces in the name. So these are a few restrictions that you have to follow when you name any column, any table, any database, and so and so. These are called naming conventions. So with the SQL statement, we have to study data manipulation statements. In the very beginning, I told you that the statement that already studied, that was a basic overview of that, in which some of the statements were regarding data definition and some were data manipulation. And now these are the 4 statements. Those are basically used for data manipulation. Yes, please, मैं बेटे लेक्चर में हूँ. Okay. So select statement, insert statement, update statement, and delete statement. So these statements are called manipulation, data manipulation statements. So we have to discuss it one by one. Might be today we will discuss only select statement. We have already discussed it, but that is a bit repetition, and that you have to get the concept of select statement, because it's very very useful and mostly used statement in SQL. So uppercase words are reserved word. I say when I write any word in uppercase letters, this is reserved word, and any user, he must follow this word in terms of reserved word, in terms of that should be written as it is, and the spelling should be the same. You can't write another spellings. So these are, you may say, the name of the command that should be executed, let's suppose, and these are the reserved word. We also say them the keyword also, and with any language there are reserved word or keyword that are being used. So the SQL statements is capable of performing different operations. Those are selection, projection, and join. We study these operations in relational algebra as operators. We say this is selection operator, projection operator, join operator. And if you recall that in that we studied that when you have to select number of rows from the given rows according to some condition, etc., then you use selection. And if you are interested in some columns, not all the columns, if your table have 6 columns and you say the only 2 or 3 columns should be displayed, the rest should not be displayed, then you are choosing the columns. So that is basically in terms of projection. Further, we studied that when we do in unnormalized form to normalized form, then the first table, that is unnormalized table, that usually is split it up into different tables. After some time, if we need some data that is within the both 2 tables or 3 tables,
those we got after normalization, and we say this data we likely to get that's fall within the table A, table B, and table C, etc. Then how we have to do it, how we have to get that, how we have to retrieve that. That is possible with the help of the join, because we join two tables and get our required data from the both. So the select statement helps you for the selection, for the projection, and the joint operations. Here, this is the general syntax of select statement. Here written select, distinct, all, then column expression, then written as new name. First, I have to discuss the first row. Select, distinct means if any of the rows they have some sort of duplication, those should be avoided, and that may be avoided with the help of the distinct keyword. If you say all, they mean all the records should be displayed. And then a star is written, that is wildcard. It replaces all the columns. If we say select star, it means you are choosing all the columns. Otherwise, you have to give the name of the column. Further, it is written column expression. You can write a column name, or you can write an expression. You can say if my column name is pay and I would like to retrieve pay multiplied by 12. I say this is annual income of the pay. So you can say select pay, comma, then you say what pay multiplied by 12. So then this is some sort of expression. Further, it is written as. When you display these rows and the columns, the name of the column that you have already given to the structure of the table, those are displayed at the head in the first row. If you say that name should be displayed in an other way, that should be the nickname of other that or name of other that. Let's you say rather than pay, you say this is employees pay. Then you say as and give another name. So that column heading should be displayed what you see as. So these should be done with the help of the select statement. You will do some sort of exercise and then you will get the concept. Then from, you have already used from table name. Then you say alias. We can give another nickname to this table. We can use that. Then where, for the where condition, we have studied that for the where condition, that you can use your logical operators, you can use relational operators, that is less than, greater than, not equal, equal, and so and so. Similarly, you can use and or not in order to combine two conditions with the help of or and, or you can use a not, basically logical operator not. It is implemented on a single column, whereas and or you have to say greater than this or less than this and so and so. Then again is having clause, having condition. We say there is a difference between where condition and having condition. That should be more clear to you when we use those. Just you say that where condition is operated on all the rows, where the having condition is basically treated when we have to group the data. So this is a basic difference that should be clear when we use where clause and having clause. Then there is the group by. We have to group some sort of rows, they have the same values for any column. And then order by, it is basically used when you say that my rows should be in ascending or descending order. It means we say it should be displayed in terms of that you are doing some sort of sorting. Further, some of the symbol that is used here, that's a vertical line, indicates a choice among the alternatives. And where it is written, you can say distinct, all, then you say star or vertical line and column expression. You can use star or you can use the name of the columns. This is the option for you. Then curly bracket indicate that the required elements, for example, in this you say when you have the curly brackets,
these are required and how you can use these for repetition, etc. Then there is a bracket indicates an optional element. You have seen here written column expression as, and those are in bracket. You say these are the optional, we can use it or not use it, it depends upon you. So in that manner, you can think about that these curly brackets are used for the repetition, and this small vertical line indicates some sort of choice, and the big brackets, they are basically used to indicate the optional elements. Okay, when we write these statements and execute them, then you will get the concept of these. This is just the general syntax. Is screen is in front of you? Hello? Yes, sir. Okay. Excuse me, So sir. there is the sequence of operation of processing when we use select statement, because in your general syntax you have a select word, reserve word, you have from, then where. जी बेटे, हेलो हेलो हेलो, जी सर, अब स्क्रीन आई है। जी मैं ये कह रहा था कि स्क्रीन अब आई है। अभी आई है, ये हेलो? पहले थी नहीं स्क्रीन फ्रंट, तो पहले कुछ भी नहीं था। जी सर, अभी आई है, अभी शो हुई है। नहीं सर, नजर आ रहा था पहले। सर ठीक है, पहले भी शो हो रही थी। जी अभी शो ठीक हुई है। है। अच्छा अच्छा बेटे, इसमें you have seen that it is written ठीक है। select मेरे पास अभी शो हुई है। from, where, group by, having, order by. You have seen these words when we have learned about the general syntax of select. Only thing that you have to keep in mind that these words, the reserved words, those are written, these should be executed in the order it is given. For example, when you have to write select statement and you likely to write where clause also, you can write that after the from. If we use group by clause, then you use after where. If we use having clause, that should be used after group by. If we use order by clause, then it is used after having. So in that manner, this order can't be changed. If you change this order, then might be your select statement can't be executed. It gives you some sort of error. Then you have to think about the order of the class cannot be changed, where class filters individual rows going into the final result table, and having class filters groups going into the final result tables. So this is the, although both where class and having class are used for filtering something and they have condition, but the where class is always executed on all of the rows, whereas the having class filters only when you have some sort of groups, and that is on the groups, that is executed on the groups, are operated on the groups. So you will learn when we have to use this statement on any table. So whenever I have to write this statement, I have written this select column 1, column 2 from table, and if in the first row you have see this SQL statement consists of reserved words and the user defined words, because the column names are defined by you, table name is defined by you. When you write any condition, whether some attribute is greater than or less than or equal so and so, that is also written by you. So what you are writing, basically those are the user defined words, and the reserved word, those are in capital letters, those are written as it is in order to execute the command. Clear? Furthermore, when the SQL statements are case instance. Case insensitive means that like C language or C++ language, it is case sensitive. If we say in capital letters NAME and also write another variable name NAME in
small letters or lowercase letters, both are different. But if you are using SQL, either you have to write in uppercase letters, either you write the same thing in lowercase, they are the same. So you say this is case insensitive. Furthermore, every SQL statement, when you likely to execute it, it should be terminated by a semicolon. At the end, you have to semicolon and end. But the day on Friday, when you are executing those commands with this environment that is being used by the Arham, you need not to give a terminator there, and it was executing. So it varies when you are using some sort of such framework that is using SQL. But when you are using SQL as a database management system, or you are using Oracle, it is needed that you have to terminate your SQL statement with the help of a semicolon. Okay? Are you getting? समझ आ रही बेटे? जी सर. ठीक. This is a one table. It is employee, and suppose that you have created that table, and it has employed ID, name, and position and pay. Just it is as a reference. You can create that, and just I likely to ask you to learn about how we have to use select statement. Just for reference, we have created a table. It have 4 attributes, and we now write some SQL statements. That is the select statement, and in order to retrieve the data. Basically, the select statement is for retrieving the data from a table and making or running some sort of queries. You can write, you can create any table with different attribute names. So for the data manipulation, the first statement, that is the select statement, that we likely to use. It is used to query data in the database. We have to retrieve the data. So these are the examples given. For example, select star from employee. Employee is a table, and employee is a word that is user defined word. You have defined that. Select and from are reserved words, and star means that you likely to display all of the columns. Those are within that table or within the structure of that table. The second example is select employee ID, position from employee. It means either you can use star for wildcard, all the columns are there, or you give column name by yourself. So in the second statement, you say that only 2 attribute values should be displayed for all the records. One is employee ID and other is position. You are only getting 2 columns. The third one, select employee ID, name, and pay multiplied by 12. So we have discussed in its general syntax. Sometime you give a name of the column, and sometime you give an expression. So in this, I have given an expression that for all the records, the column employee ID, the column name, and the attribute name pay multiply by 12, that should be executed. It means first column value should be employee IDs, the second column should be name, and third column not should be pay, but the result of pay multiplied by 12. So it may be executed in this manner. So you got it. You can write a attribute name and you can write an expression. The last one is select employee ID, name, pay multiplied by 12 as annual salary. If you execute this one, then pay multiplied by 12, its heading should be annual salary, and the value should be displayed under the annual salary, because you are saying that this column should be written as or displayed as annual salary rather than pay multiplied by 12. Did you get? Assalamualaikum, sir.
वालेकुम सलाम। डिड यू गेट इट? नो सर। जैसे आप किसी भी कोई भी जो कॉलम आपका जिसको आपने पहले नाम दिए हुए हैं, जो आपने उस टेबल की स्ट्रक्चर बनाते हुए दिए, आप कहते हैं जब आप सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं तो उसकी जो पहली रो होती है उस पर हेडिंग आ जाती है, और वो हेडिंग वही होती है जो आपने अपने कॉलम्स के या एट्रीब्यूट्स के नाम रखे होते हैं। और जब हम इस तरह के नाम रखते हैं तो वो बड़े ब्रीफ से हम रखते हैं, जैसे एम्प्लॉई आईडी को EMP_ID रखा हुआ है। आप कहते हैं नहीं, इसकी जगह एम्प्लॉई आईडी पूरा का पूरा लिखना आना चाहिए या एम्प्लॉई आइडेंटिफिकेशन लिखा आना चाहिए, तो आप उसको लिख देंगे सिलेक्ट EMP_ID एज, पूरा वो लिख देंगे एम्प्लॉई आइडेंटिफिकेशन। सो व्हेन यू हैव टू से द डिस्प्ले, तो वहां पे जो उसकी हेडिंग है वो क्या लिखी आ जाएगी, एम्प्लॉय आपकी आइडेंटिफिकेशन रादर देन एम्प्लॉय आईडी। क्लियर हो गया बेटे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। सर मेरी एक छोटी सी गुजारिश थी। पहले सुन ले, पहले लेक्चर कर ले बेटे, फिर जो सर मर्जी बताए। सर मैं बिल्कुल आप सर सर जी। आपकी बात वैसे ही चलती रहेगी सर, लेक्चर से रिलेटेड है। सर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ बताएं सर बेटे। काइंडली लेक्चर को उर्दू में चलने दें सर। वो अच्छा, उर्दू इंग्लिश में में ऐसा लगता है जैसे रीडिंग हो रही है सर, वो ऊपर से गुजर रहा है बिल्कुल। नहीं, रीडिंग बेटे तो हम तो आपको समझा रहे हैं, ये जो सामने लिखा हुआ है उसमें तो रीडिंग में करता नहीं तो मैं सर, लिख वो देता बात पता है सिलेक्ट क्या है फ्रॉम सर, वो सामने भी इंग्लिश सर वो सामने भी इंग्लिश लिखी है, आप भी वो इंग्लिश में समझा रहे हैं, तो वो सर ऊपर से गुजर रहा है। अच्छा ऊपर से सर चलो बिल्कुल भी ठीक, समझ उर्दू में सर समझा बिल्कुल दो। भी नहीं समझ आ रहा, चलो सही ये सर कह बेटे रहे यकीन हैं। माने पहली कुछ जो समझ नहीं स्टेटमेंट आ है रहा। वो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। सर आई रिक्वेस्ट के स्टार्ट से कर लें, फिर स्टार्ट से उर्दू में करना है। मैं तब से कहना, मैं 2 बार सलाम लिया आपने आगे से, वो शायद आपको अच्छा पता चलो नहीं ये चला। पहली एग्जांपल देखें। आप ये कहें कि जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है ये बुनियादी तौर पे जो भी आपने अपना टेबल बनाया होता है उसमें से डाटा को रिट्रीव करने के लिए यूज होती है। हम ये कह देते हैं कि सिलेक्ट स्टेटमेंट क्यूरीज के लिए यूज होती है। ठीक है बेटे, क्यूरीज में क्या होता है कि कभी कभी आप ये कह देते हैं कुछ टेबल में जितने रिकॉर्ड हैं सारे के सारे मुझे डिस्प्ले करके दो। कभी आप कह देते हैं नहीं, उसमें से मुझे कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे डिस्प्ले कर दो जो मैं कंडीशन दूंगा उसके मुताबिक हूँ। फॉर एग्जांपल आप कह देते कि अगर उसमें नेम आपका कोई एट्रीब्यूट है, आप कहते हैं कि इसमें से मुझे ऐसे जो रोज हैं या रिकॉर्ड्स हैं वो डिस्प्ले करो जिसमें नेम असद है, तो आप उसके साथ एक वेयर के साथ कंडीशन लगाएंगे। तो अगर आपने कंडीशनली रिट्रीवर करना हो तो आप वेयर क्लास यूज करते हैं, अगर आपने नॉन कंडीशन करनी हो तो आप ऐसे ही लिख देते हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। स्टार का मतलब होता है वाइल्ड कार्ड। स्टार का मतलब ये है बेटे कि जितने भी आपके कॉलम्स उस टेबल के हैं वो सारे के सारे डिस्प्ले कर दो, बेशक 2 हैं 4 हैं 6 हैं 8 हैं, जैसे हमने टेबल बनाई उसमें 4 हमारे जो हैं वो हमने रखे हुए हैं एट्रीब्यूट। तो जब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करेंगे तो ये जो हमारा इससे पिछले वाला टेबल है उसमें से बेटे आपने जितने उसके एट्रीब्यूट बनाए हुए हैं वो सारे के सारे जो है ना वो आपको नजर आएंगे। इसमें कितने हैं, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, पोजीशन है और पे, और ये जिस तरह लिखा हुआ है जैसे ये टेबल बना हुआ इसी तरह आपको इसका आंसर नजर आ जाएगा। तो अगर आप इसमें बेटे ये चाहते हैं कि मैं तो सारे कॉलम्स नहीं चाहता, मैं तो इसमें सिर्फ 2 कॉलम चाहता हूँ, एक एम्प्लॉय आईडी चाहता हूँ, एक पे चाहता हूँ, या आप कहते हैं सिर्फ मैं नाम चाहता हूँ और पे चाहता हूँ, तो आप इन दोनों के नाम वहां पे लिख दोगे स्टार की जगह। तो ये जो आप लिख रहे हैं इसमें आप बुनियादी तौर पे आप अपनी चॉइस कर रहे हैं कि मुझे तो जो नीडेड है वो सिर्फ 2 कॉलम नीडेड है, मुझे सारे नीडेड नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी क्वेरी पे। तो ये जो पहली 2 आपकी क्वेरीज हैं, फिर तीसरी क्वेरी है ये देखें, इसमें चौथी क्वेरी भी देखें, इसमें किसी जगह भी वेयर क्लास नहीं यूज हुई। इसमें जो भी आपकी सिलेक्ट कमांड है ये जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं 100 है 200 है 15 है 20 है ये सब पे ऑपरेट होगी। तो दूसरा जो है आपकी सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा पोजीशन फ्रॉम एम्प्लॉय, तो इसमें सिर्फ 2 कॉलम आपको डिस्प्ले होंगे, एक एम्प्लॉय आईडी वाला एक पोजीशन वाला। तीसरे में मैंने ये आपको बताया था जो उसकी जनरल सिंटेक्स है उसमें बताया बेटे कि आप कॉलम भी लिख सकते हैं और जो कॉलम है वो उसका कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन होता है आप किसी भी जो वेरिएबल है उसके साथ कोई ना कोई आप ऑपरेटर लगाएं, जमा तफरीक ज़रब और किसी और के साथ लगाएं तो वो आपका एक एक्सप्रेशन बन जाता है। इफ यू से ए इज ए वेरिएबल, बी इज ए वेरिएबल,
एंड ए प्लस बी, देन ए प्लस बी एक एक्सप्रेशन बन जाता है, या ए मल्टीप्लाइड बाई 12 ये भी एक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो अब आप ये कह रहे थे कि मैं ये जो स्टेटमेंट लिखी उसमें ये है कि आप एम्प्लॉय का आईडी मुझे डिस्प्ले करें, नेम डिस्प्ले करें, और जो पे आपकी है उस पे की वैल्यू ना मुझे दें, उस पे की वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई करके वो मुझे डिस्प्ले करें। तो दैट इज एन एक्सप्रेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज। समझ आ रही है? हेलो? यस सर। अब यस सर, अब जी सर आ रही है, अब पहले से ज्यादा आ रही है। जो लास्ट वाला ना बेटे, उसमें मैंने ये बताया कि हमारे जो एट्रीब्यूट होते हैं उनकी हमने जरा संभाल रखे होते हैं नाम, इसलिए कि हमें कोडिंग जरा कम करनी पड़े, जो एंट्री करनी होती है हमने, लिहाजा हम कहते हैं यार ये छोटे छोटे नाम रख लो, लेकिन ये थोड़े बहुत हमें अपील करते हो ये क्या है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो नेम है ना, जब आप लिखेंगे सेलेक्ट EMPID नेम पे मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये इसके कॉलम ऊपर बने हुए आ जाएंगे। आप कहते हैं नहीं, ये नेम की जगह पे मुझे लिखना है नेम ऑफ एम्प्लॉय, ये नेम ना सिर्फ लिखा है। तो जब नेम ऑफ एम्प्लॉय आपने लिखना है तो वो तो आपने एट्रीब्यूट का नाम नहीं रखा हुआ, आपने तो एट्रीब्यूट का नाम नेम रखा हुआ है। अगर आप इसको इस तरह डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप लिख देंगे सेलेक्ट EMPID कॉमा नेम एज नेम ऑफ एम्प्लॉय। तो जब आप वहां पे नेम ऑफ एम्प्लॉय लफ्ज लिखेंगे तो जब आपका डिस्प्ले नजर आएगा तो वहां पे हेडिंग में जो आपके कॉलम्स की हेडिंग होगी वहां सिर्फ नेम नहीं लिखा होगा, नेम ऑफ एम्प्लॉय लिखा होगा। एज की समझ आ गई है? यस सर। अभी जो लिखा हुआ है पे मल्टीप्लाइड बाई 12 एज एनुअल सैलरी, तो अब यहाँ पे जो हेडिंग है ये पे मल्टीप्लाइड बाई 12 नहीं नजर आएगा लिखा हुआ, वहां पे लिखा आएगा एनुअल सैलरी। तो जो आपने एज के साथ किया ये उसको रिप्लेस कर देता है। तो ये आपकी जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें अभी हमने वेयर क्लास नहीं यूज की, हमने सिर्फ और सिर्फ सिंपल जो है ना वो क्वेरीज की हुई हैं जिसमें ऑल रिकॉर्ड्स आपके आते हैं। वो रिकॉर्ड्स का जो आपने लिखा है वो सिर्फ ये लिखा है कि सिलेक्ट स्टार, उसके बाद फ्रॉम और टेबल नेम। तो अगर आप कंडीशनल रिट्रीवल करना चाहते हैं तो उसके साथ फिर आप वेयर क्लास यूज करेंगे। यहां तक नहीं समझ आई तो बताएं सर एक दो पीछे वाली स्लाइड है वो रिपीट करते हैं, मुझे याद नहीं कौन सी स्लाइड है सर, वो जहाँ पे पोजीशन वाला था ना वो रिपीट करते हैं। ये वाला सर इससे पिछली ये वाला सर, ये वाला। जी इसमें सर। देखो बेटे, इससे जो पहली स्लाइड है उसको जरा देखें। इसमें देखें जो सिलेक्ट की ना आपने जनरल सिंटैक्स लिखी हुई है, और इसमें देखें क्या कुछ लिखा हुआ है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑल, फिर नीचे लिखा हुआ फ्रॉम, फिर लिखा हुआ वेयर, फिर लिखा हुआ ग्रुप बाई, फिर लिखा हुआ ऑर्डर बाई, लिखा हुआ ना बेटे ऐसे, और एक हैविंग भी यस लिखा सर। हुआ। अब वो ये कहता है कि ये जितने आपके रिजर्व वर्ड हैं ये किस तरह ऑपरेट हों, इनका सीक्वेंस क्या है। लेट्स सपोज मैं आपको, आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी है C++ या सी या और कोई जावा? सर C++। चलो C++ आपने पढ़ी है। अगर मैं बेटे आपको कहता हूं कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है जो लिखा हुआ है A मल्टीप्लाइड बाई B प्लस सी, A मल्टीप्लाइड बाई B प्लस सी, तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा? क्या A और B को पहले मल्टीप्लाई करेगा या B को और C को पहले जमा करेगा फिर A से मल्टीप्लाई करेगा? सर लेफ्ट टू राइट जाएगा तो A इंटू B होगा पहले। नहीं, अगर मैं ये लिख दूं A प्लस B मल्टीप्लाइड बाई C फिर कैसे होगा? A प्लस B पहले होगा, बाद में C से नहीं, मल्टीप्लाई गलत है, होगा। आपने गलत पढ़ा हुआ है, ये झूठ है सर वो बेटे। ऐसा प्रियोरिटी नहीं के है हिसाब कि जो से होगा। हायरार्की है उसमें जो मल्टीप्लिकेशन होती है ये पहले एग्जीक्यूट होती है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये पहले होती है और ये बाद में होती है, प्लस माइनस। ये अगर ठीक है आपका सर, ये वो कॉन्सेप्ट बना हुआ जी है तो जी। गलत है बेटे, ये ऐसा नहीं है। जो भी आपके जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं सी में, C++ में, इसकी एक प्रेसिडेंस होती है। जब भी मैं कोई एक्सप्रेशन लिखता हूँ जिसमें सिंपल यही आपके ऑपरेटर्स हैं, जमा तफरीक ज़रब वाले, जिसको आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं, इसकी हायरार्की ऐसे है कि ये आपका ये मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन किसी भी एक्सप्रेशन में ये पहले कैलकुलेट होता है और उसके बाद आपकी माइनस और प्लस कैलकुलेट होते हैं। अगर आप लेफ्ट से राइट जाएं, अगर मैंने लिखा है A प्लस B मल्टीप्लाइड बाई C, तो B मल्टीप्लाइड बाई C पहले एग्जीक्यूट होगा, जो उसका जवाब आएगा वो फिर इसमें A में जमा होगा। अब समझ आ रही है? तो उसी यस सर। तरह हमने ये देखना है कि बेटे ये जो इसमें फ्रॉम लिखा हुआ है, वेयर लिखा हुआ है, ग्रुप बाय लिखा हुआ है, हैविंग लिखा हुआ है, ऑर्डर बाय लिखा हुआ है, ये किस तरह होने, पहला कौन सा ऑपरेट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा।
तो ये उसकी अगली स्लाइड बेटे इसको ये बता रही है कि जब भी आप सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखें तो उसके साथ फ्रॉम जो है ना, ये वेयर से पहले फ्रॉम ने ऑपरेट होना है। अगर मैं कहूँ ऑर्डर बाई, तो ऑर्डर बाई ने हमेशा फ्रॉम के बाद ऑपरेट होना है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे लिख दूँ सेलेक्ट और यहाँ पे स्टार डाल के ऑर्डर बाई फ्रॉम लिखूं, ये गलत है। अब समझ आ गई बेटे? नहीं आई तो पूछें। यस सर, आगे। जिस तरह बेटे ये लिखा हुआ ना फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाई, हैविंग, ये ऑर्डर बाई। अगर सपोज करो आप कहते हैं बुखारी साहब क्या इस तरह पॉसिबल है कि मैं लिख दूं सेलेक्ट फ्रॉम और फिर वेयर, फिर हैविंग और फिर ग्रुप बाई लिखूं, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक हो गया? या मैं लिखूं सेलेक्ट फ्रॉम के बाद ऑर्डर बाई लिखने के बाद फिर वेयर क्लास लिखूं, तो वो गलत हो जाएगा। तो जिस तरह इनका ऑर्डर दिया हुआ है इसी ऑर्डर में इनको हमने लिखना है। ओके सर। ठीक है बेटे। अच्छा, दूसरा नीचे जो आपके लिखा हुआ है वर्डिंग जो है ना, ये येलो सी लिखी हुई है। पहले तो वो ये कहता है कि इस ऑर्डर को इसी तरह जैसे ये लिखे हुए हैं, आपने जब भी कोई सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखनी तो इस ऑर्डर को फॉलो करना है। दूसरा उसने इसमें बताया हुआ कि हम वेयर क्लास भी यूज करते हैं और आपकी हैविंग क्लास भी यूज करते हैं। हालांकि ये दोनों ही फिल्टर करती हैं रिकॉर्ड को अकॉर्डिंग टू कंडीशन। लेकिन बेटे ये होता है कि वेयर क्लास जितनी भी रोज आपकी होती है टेबल में सब पे ऑपरेट होती है, लेकिन जो हैविंग क्लास है ये एक उसमें से स्पेसिफिक ग्रुप पे ऑपरेट होती है। मिसाल के तौर पे आपने उसमें लिखा हुआ है कि आपका एक टेबल है जिसमें एक एट्रीब्यूट सेक्स है और सेक्स की वैल्यू एम भी लिखी हुई है मेल के लिए और एफ लिखी फीमेल के लिए। तो अगर हम उसको सॉर्ट करेंगे तो किसी जगह एफ वाले इकट्ठे हो जाएंगे, फिर एम वाले इकट्ठे हो जाएंगे। समझ आ गई बेटे? तो ये हम कहते हैं कि ये दो ग्रुप बन गए हैं। तो हैविंग क्लास जो है ना, अगर उसमें कोई फिल्टर ऐसा होता है तो वो इस ग्रुप पे अप्लाई होता है। तो ये दोनों में फर्क है। ये अब जब काम करेंगे तो इसमें आपको लर्निंग हो जाएगी बेटे। ओके सर। अब ये यहां तक समझ आ गया बेटे? जी सर, आ गया। अच्छा, अब ये देखेंगे कि जितनी भी सिलेक्ट स्टेटमेंट की हमने एग्जांपल ली है इसमें वेयर क्लास कभी नहीं हमने अभी यूज की, हम सिंपल क्वेरी सिर्फ कर रहे हैं। ठीक है बेटे? जब हमने कंडीशनल करनी है तो फिर हमने वेयर क्लास यूज करनी। अब देखो जो नेक्स्ट जो है बेटे वो है वेयर क्लास। हम वेयर क्लास के साथ ये अपनी कंडीशन लगाएंगे और अपने रिक्वायर्ड जो डेटा है उसकी रिट्रीवल करेंगे। तो इस जो वेयर क्लास है इसके साथ हम कुछ कंपैरिजन भी यूज करते हैं। वो कंपैरिजन आपने पहले भी थोड़ा सा मैंने आपको उसका बताया था। जो आपके जितने भी आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो कंपैरिजन के लिए यूज कर लेते हैं आप, जिसमें ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, इक्वल होता है, नॉट इक्वल होता है ना बेटे, हम वो सारे यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड और नॉट, जिनको हम जो दो कंडीशंस होती हैं उनको मिला लेते हैं आपस में। इफ मैं ये कह देता हूँ कि अगर वो बंदा जो है उसका नाम ए से स्टार्ट होता है या उसका नाम बी से स्टार्ट होता है, तो मैं दो कंडीशन लगाऊंगा कि या तो उसका नाम ए के बराबर है या उसका नाम बी के बराबर है। तो उन जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसमें वो वाले भी डिस्प्ले हो जाएंगे जिसमें उसका नाम ए के बराबर है, और वो भी डिस्प्ले हो जाएंगे जिसका नाम बी के बराबर है। समझ आ रही बेटे? तो आपने एंड और नॉट पढ़ा है, ये भी आपके जो कंडीशंस हैं उनको आपस में कंबाइन करने में एंड और नॉट भी यूज हो सकते हैं। और जो नॉट ऑपरेटर होता है ये यूनरी ऑपरेटर होता है, ये एक ऑपरेंड पे होता है, जबकि एंड आर आपके दो पे यूज होते हैं। तो ये आप कंपैरिजन है। उसके बाद है बेटे ये इसकी एक ना एग्जांपल दी हुई है, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी नेम पे फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर पे ग्रेटर देन 2000। अब आपने बेटे इसमें एक चीज जरूर आपने देखनी है, गौर करना है कि मैंने जो फ्रॉम है उसको पहले लिखा और वेयर को बाद में लिखा हुआ है, ऐसे ही है ना? तो अगर मैं इसमें ऐसे लिखता हूँ सिलेक्ट ईएमपी नेम पे वेयर पे ग्रेटर देन 2000 फ्रॉम एम्प्लॉय, तो वो मेरा ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैंने जो ऑर्डर मुझे बताया हुआ है उसको मैंने वायलेट नहीं करना। ये समझ आ गई बेटे? फिर दूसरी एक और सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। इसमें हम सारे के सारे कॉलम चाहते हैं, लेकिन हम इसमें से रोज वो चाहते हैं जो हमारी इस कंडीशन को मीट करे। उसमें लिखा हुआ है जो नेम है बंदे का वो नासिर होना चाहिए, या वो रिकॉर्ड जिसमें पे जो है वो ग्रेटर देन 2300 है।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर जितने भी आपके पास रिकॉर्ड्स हैं उनमें वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे जिनमें किसी बंदे का नाम नासिर है। हो सकता है उसकी पे जो है ना वो 1000 हो, अब उससे गर्ज नहीं, इन आर का मतलब होता है दोनों कंडीशंस में से एक कंडीशन मीट हो जाए। तो वो सारे जो आपके रिकॉर्ड हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे जिनमें या तो उसका नाम नासिर है, उस एट्रीब्यूट में नेम की वैल्यू नासिर है, या जो पे की वैल्यू है वो 2300 से ग्रेटर है। भी समझ आ गई बेटे? तो अगर बेटे मैं इसमें एंड लिख देता हूं फिर क्या होगा? select star from employee where name is equal to Nasser and pay greater than 2300। अब बताएं इसका क्या रिजल्ट आएगा? सर वो दोनों को चेक करेगा, दोनों कंडीशंस दोनों को अगर चेक ट्रू होंगी करेगा, तो फिर दोनों वो गेट कंडीशन मीट करेगा। होनी चाहिए। नेम भी उसका नासर हो, जो वो वैल्यू है, नेम जो एट्रीब्यूट है उसमें जो वैल्यू है वो नासर भी हो, और पे की वैल्यू भी 230 से ग्रेटर हो, तो फिर वो ही नजर आएंगे आपको। समझ आ गई बेटे? तो आप वेयर क्लास के साथ जितनी क्वेरीज करते हैं वो कंडीशनल हैं। उससे पहले जो हम कर रहे थे वो उसमें नॉन कंडीशनल थी, हमने कोई कंडीशन नहीं लिखी थी, जस्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिखते रहे। यहां तक सही है? डिड यू गेट सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है सर, नेम वेयर नेम इज इक्वल टू नासिर और पे ग्रेटर देन 2300। सर यहाँ पे पे तो किसी की भी ज्यादा हो सकती है और आपने और लगा दिया है, तो हाँ, सर हमें ये मतलब रिकॉर्ड ही वो चाहिए थे, हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड चाहिए थे जिनमें हम ये कहते हैं या तो वसद उसमें बंदे का नाम हो, या ऐसे लोग हों जिनकी जो है पे जो है ना वो 2300 से ज्यादा है, वो दोनों ही हमें चाहिए। ये डिपेंड करता है आपकी क्वेरी पे कि आपको कौन सी क्वेरी लगानी है, जो आपका प्रॉब्लम होता है उसके मुताबिक हम ये चाहते हैं। सर इस कंडीशन के मुताबिक वो काफी ज्यादा सिलेक्ट हो जाएंगे जो 2300 से ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, वो सारे वो दे देगा, बेशक उनका नाम नासिर ना भी हो। ओके। हाँ, क्योंकि किसी का नाम नासिर है, उसकी पे जो है ना वो ये ग्रेटर है, फिर भी वो दे देगा। एक बंदे का नाम बशीर है, जो उसकी पे जो है ना वो 2300 से ज्यादा है, अब नाम तो बशीर नहीं है उसका, नाम जो हमने तो लिखा हुआ है नासिर दे, लेकिन वो उसको भी दे देगा क्योंकि उसकी पे उससे ज्यादा है। और कंडीशन में होता है कि दोनों में से एक भी फुलफिल हो जाए तो वो कंडीशन को ट्रू समझता है। क्लियर हो गया अभी? जी ओके, सर। चलो जी नेक्स्ट में हम जाते हैं इसके बेटे। अब है दूसरा जो उसमें लिखा होता है रेंज सर्च कंडीशन। इसमें दो आपके रिजर्व वर्ड यूज होते हैं, एक बिटवीन, एक नॉट बिटवीन। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड पे, तीन हमने एट्रीब्यूट लिए, और किससे लेना हमने डेटा, किस टेबल से? एम्प्लॉय से लेना है। वेयर पे बिटवीन 2500 एंड 3500। आप ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसे रिकॉर्ड जो है ना वो डिस्प्ले कर दो जिसमें तीन एट्रीब्यूट हमने डिस्प्ले करने हैं सिर्फ रिजल्ट में, और ये उन लोगों का रिकॉर्ड होगा, ये वो लोग होंगे जिनकी तनख्वाह 2500 से लेके 3500 तक है। तो ये हमने रेंज मुकर्रर कर दी। तो वन थिंग दैट इज रिटन इन येलो वर्ड्स, इट इज रिटन इंक्लूड्स द एंड पॉइंट्स ऑफ द रेंज। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं बिटवीन यूज करूंगा तो जो मेरी पहली वैल्यू है जो मैंने 2500 दी है ये भी उसमें शामिल है, और 3500 भी शामिल है। इनको शामिल करके हमने ये रिजल्ट लेने हैं। ऐसा नहीं कि ये 25 से ऊपर शुरू कर ले और 35 से नीचे रखे, ऐसा नहीं है। डिड यू गेट माई पॉइंट? इंक्लूड्स द एंड पॉइंट्स ऑफ द रेंज, जो आप रेंज दे रहे हैं उसके एंड पॉइंट्स पार्ट ऑफ दैट कंडीशन होते हैं। इज इट क्लियर? बताएं भी। जी सर। रेंज की समझ आ गई? फिर आपका एक थर्ड वर्ड जो था वो लिखा हुआ था बेटे सेट मेंबर सर्च। ये देखें आपकी पिछली स्लाइड में ये लिखा हुआ कंपैरिजन, रेंज, सेट मेंबरशिप, पैटर्न मैच और नल लिखा हुआ ना बेटे। ये सारी ही चीजें वी कैन यूज विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें मेंबरशिप सर्च में देखें कि यू आर यूजिंग ए कंडीशन इन और नॉट इन। कोई चीज जो है जो आप देंगे वैल्यूज उसमें फॉल करती है या नहीं करती। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर पोजीशन इन लेक्चरर प्रोफेसर, कि जो पोजीशन हमने लिखी हुई है अपने डेटाबेस के टेबल में, वो जो है उसकी जो वैल्यू है पोजीशन की, वो इन जो वैल्यूज हैं इनमें फॉल करती है। इसका मतलब वो लेक्चरर वाला भी दे देगा, प्रोफेसर वाला भी दे देगा,
लेकिन असिस्टेंट वाला नहीं देगा, क्योंकि आपने कहा जो पोजीशन है, हर रिकॉर्ड को हमने देखना है कि जो पोजीशन की वैल्यू है क्या वो ये मैंने जो दी हुई है, ये जो मैंने सेट दिया हुआ है, इसमें अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। अगर अवेलेबल है तो वो इनको लिख देगा। अगर बेटे मैं इसकी जगह लिख दूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर पोजीशन नॉट इन, इसका क्या मतलब होगा? कोई बच्चा बताए क्लास में। शाबाश। हेलो, आवाज नहीं आ रही भाई? सर रिपीट करते हैं पहले, रिपीट क्या बेटे? मैंने कहा कि यही जो स्टेटमेंट लास्ट वाली है, इसमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर पोजीशन इन लिखा हुआ है, मैं इसको नॉट इन कर देता हूँ, उससे क्या मुराद है? ये टेबल में नहीं होगी लेक्चरर और प्रोफेसर। हाँ, उसका मुराद ये है कि जो पोजीशन आया, जो उसकी वैल्यूज हैं, वो इनमें से नहीं होनी चाहिए जो इसमें ब्रैकेटों में मैंने दी हुई है। समझ आ रही बेटे? अगर Yes, इन sir. है तो इसी सेट में से जी, होनी sir. चाहिए। तो देन यू कैन चूज दिस मेंबरशिप सर्च। अब आपको पता चल गया कि रेंज सर्च क्या है, उसमें बिटवीन इन बिटवीन दे दिया, फिर मेंबरशिप सर्च दे दिया। इससे पहले जो हमने ये आपको दी है उसमें आपने ये देखा है कि हमने एंड और नॉट भी यूज किया है। ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट वाला है पैटर्न मैच। तो मैंने इसको पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था कि ये जो करैक्टर्स हैं ये किसी भी जो सीक्वल का डायलेक्ट है उसमें मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। किसी जगह ये इन्होंने परसेंटेज का साइन दिया हुआ हो सकता है वो इसको इंटेरोगेटिव साइन यूज करता हो। तो ये जो परसेंटेज का साइन है ये एक से ज्यादा करैक्टर्स को जो है ना रिप्लेस करता है, और जो आपका अंडरस्कोर का साइन है ये एक सिंगल करैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अभी आपने एक यूज करके देखा था सिलेक्ट के साथ स्टार, वो भी एक वाइल्ड कार्ड है जो सारे ही के सारे ही आपके कॉलम्स को लाता है। वो कहता है सारे के सारे कंसिडर करो। तो ये जो परसेंटेज का करैक्टर है रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर देन 1 करैक्टर्स। तो अभी मैंने ये इसकी एग्जांपल दी है, सेलेक्ट नेम पोजीशन फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर पोजीशन लाइक, ये लिखा हुआ है एक परसेंटेज, फिर FV लिखा हुआ है, फिर परसेंटेज लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कोई भी जो आपके वहां पे वैल्यूज हैं, जो पोजीशन की वैल्यूज हैं, उसमें पहले जोन से मर्जी करैक्टर हो, आखिरी जोन से मर्जी करैक्टर हो, दरमियान में FV आ रहा हो, वो उसको डिस्प्ले कर देगा। वी डिड यू गेट इट? यस सर। हमारे वहां पे पोजीशन प्रोफेसर है तो PRO ये तीनों करैक्टर्स को पहला कर लेगा, और OR को आखिरी 2 करैक्टर को ये एक को भी रिप्लेस करता है, 2 को भी करता है, 3 को भी करता है। ये इसका परसेंटेज का है। फिर नेक्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ है सिलेक्ट नेम पोजीशन फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक एंड डाल के ना बेटे मैंने 1 2 3 4 करैक्टर डाले हुए हैं। तो ये जो अंडरस्कोर है ये सिर्फ एक करैक्टर के लिए है। अब मैंने यहाँ पे 4 डालेंगे तो 4 करैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ है उस नाम का पहला वर्ड जो पहला अल्फाबेट तो N होना चाहिए, बाकी 4 जोन से मर्जी हो, लेकिन 4 हो, 5 नहीं होने चाहिए वहां पे। भी समझ आ रही बेटे? यस सर। अगर ये सपोज करो मैं कहता हूँ N से स्टार्ट हो और आगे 5 6 7 8 करैक्टर जितने मर्जी हो जाते तो आप यहाँ पे क्या लिखते फिर? सर रिपीट करिएगा। अगर वेयर क्लास के साथ नेम लाइक N लिखा हो ना बेटे, इसके साथ हमने 1 2 3 4 छोटे छोटे अंडरस्कोर डाले हुए हैं, तो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये जो नाम है 5 करैक्टर का ही होगा, पहला करैक्टर N होगा, दूसरे 4 कोई भी हो सकते हैं। जी सर। तो अगर सपोज करो आप कहते नहीं 4 करैक्टर नहीं, यहाँ तो 8 करैक्टर का भी जोन से मर्जी हो सकते हैं, तो फिर आप उस इनमें से कौन सा सिंबल यूज करते, परसेंटेज वाला या अंडरस्कोर वाला? अंडरस्कोर। अंडरस्कोर तो सिर्फ एक करैक्टर का होता है। सर ठीक है, परसेंटेज समझ आ गई बेटे? आप जी इसकी प्रैक्टिस करके देखना। ये जो एक एक करैक्टर है इसमें हमने सिर्फ 5 लिखे हुए, ये 5 करैक्टर से छठे पे नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये परसेंटेज लिखा हुआ है ये 0 को भी रिप्लेस करता है, इससे ज्यादा को भी करता है। तो ये इसकी पैटर्न मैचिंग की आपके एग्जांपल्स हैं। सर परसेंटेज वाला दोबारा बता दें। परसेंटेज का बेटे लिखा हुआ है परसेंटेज करैक्टर रिप्रेजेंट्स एनी सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर करैक्टर्स। इसका मतलब ये है कि वो एक से ज्यादा करैक्टर्स को रिप्लेस करता है। जो आपने ये लिखा हुआ है, लेट आप सपोज लिखते हैं कि आपने किसी
नेम लिया हुआ है हमने, एट्रीब्यूट, किसी का नाम मोहम्मद असगर है, किसी का मोहम्मद अशरफ है, किसी का नज़ीर है, किसी का कुछ, ऐसे होते हैं ना नेम बेटे। आप कहते हैं कि ऐसा करो भी कि उस नाम में दरमियान में कहीं जो है ना वो AR आ रहा हो, पहले करेक्टर जोन से मर्जी हो, आखिरी भी जोन से मर्जी हो, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, बेशक एक हो या दो हो या तीन हो। जिसका मतलब आप खुद उसको कह रहे हैं कि मोर देन 1 करेक्टर्स हो जाने चाहिए, तो वहां हमें बेसिकली ये परसेंटेज का साइन यूज कर लेते हैं। अगर आप जब कहते हैं कि नहीं मैं ऐसे नेम लेने हैं जिसमें पहले 2 करेक्टर तो जो मर्जी हो लेकिन आखिर वाले AR हो, तो फिर आप 2 करेक्टर के जहां वहां पे अंडरस्कोर डालेंगे, एक करेक्टर के लिए अंडरस्कोर, दूसरे करेक्टर के लिए अंडरस्कोर। समझ आ रही बेटे? जी सर। हाँ, आप इसको उसके साथ कंडीशन के साथ यूज करके देखें अपनी सिलेक्ट कमांड में, ये वाइल्ड कार्ड यूज करके देखें। जैसे अक्सर आपने स्टार को तो यूज करके देखा हुआ है, ये जो आपको मैंने बताया है कि लाइक, नॉट लाइक, बिटवीन वाला आप यूज करके जो आपको रेंजेस वगैरह बताता है, तो ये चीजें आप इन, नॉट इन को यूज करके देखें और फिर ये देखें कि ये कैसे ऑपरेट होती हैं, आपका आंसर जवाब कैसा आता है। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटे? जी सर। उसके बाद है बेटे ये सर ऑर्डर बाई बहुत है क्लास। आज के लिए, आई थिंक सो। आज के लिए बहुत है। सर चलो आइए। 556 हो गए हैं, बहुत से काम रुके हुए हैं ऑलरेडी। चलो ठीक है, कोई नहीं, ये बाकी जो है ना इनको नेक्स्ट में कर लेंगे। तो उसमें बेटे आपने ये करना है कि आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, और जब बेटे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको ये ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि प्रैक्टिस किए बगैर ना ये चीजें जो है ना भूल जाती हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो वो चीजें आपके जहन में रहती हैं। तो अभी जो आज हम पढ़ रहे थे, हमने डाटा मैनिपुलेशन में ये कहा है कि ये बहुत ही जो है ना यूज होने वाली स्टेटमेंट है क्वेरीज के लिए, जिसको सिलेक्ट स्टेटमेंट हम कहते हैं। उस पे आज हमने आपको ये बताया है कि ये किन किन तरीकों से आप यूज कर सकते हैं, जिसमें हमने आज अभी तक इसको वेयर क्लास के साथ यूज किया है। कभी हमारी हैविंग क्लास भी रहती है, ऑर्डर बाई भी रहती है, ग्रुप बाई भी रहती है, वो हमने इसके आगे यूज करनी है। और जो पहले इससे था लेक्चर बेटे आपको दिया, वो ओवरऑल थोड़ा सा बताया था कि इसमें डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, जिसमें हमने एक टेबल को क्रिएट किया, उसमें डाटा को इंसर्ट किया, याद होगा आपको, फिर हमने टेबल को ड्रॉप किया था। इस तरह की चीजें आपने करके देखी हैं। समझ आ रही बेटे? उसमें भी कुछ सर एक कमांड और जो छोटी सी आपको। गुजारिश है। जी बेटे। सर एक और छोटी सी गुजारिश है। सर जी गुस्सा ना बताइए। करिएगा, मैं ना हर ना, लेक्चर गुस्सा में बेटे आपसे कौन सा है, गुजारिश कर गुस्सा देता कौन हूँ। सा है? आप पढ़ेंगे तो हमें गुस्सा सर क्यों आएगा? सर वो रिक्वेस्ट ये थी कि सर जो काइंडली लेक्चर्स हो रहे हैं ना सर, ये अपलोड कर दिया करें सर। वो कहीं ना कहीं कोई मसला आ जाए ना तो बंदा चेक नहीं, मैंने करके पढ़ अपलोड लेता है किए सर, हुए वो लेक्चर, आप ना रिमेम्बर हो मुझे जाता उसमें ना बेटे, मुझे ना हो सकता है मैं एक दिन बाद करता हूँ। ये आज लेक्चर जो आपको दिया है ना, ये अभी मैं कल करूंगा, जब मैं उनको भी भेजूंगा कल ये लेक्चर के मैंने ये लेक्चर दे दिया, और आपके भी वहां पे जो आपके कोर्स वर्क नहीं जहाँ पे लिखा हुआ है उसमें ये डले हुए हैं। है। जी सर। इनकी ऑडियो ओके सर, वीडियो थैंक यू। जो डली हुई है वहां पे, आप वहां पे डाउनलोड कर ओके सर, सकते हो। ठीक है बेटे? थैंक यू सो मच। हाँ नहीं, को और बेटे क्वेश्चन अगर आपके जहन में है, आप हमसे बेटे जरूर किया करें, ताकि हम हैं ही इसलिए, और ताकि मुझे ये होता है कि चलो अल्लाह ताला की ज़ात करे आप ये कुछ सीखें यहाँ से, और फिर हमें खुशी हो कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो हमसे सीख के गए हैं, और बेशक। हमें तो बेटे खुशी होती है। हाँ, क्योंकि हम जो अपना टाइम जो है ना अगर मैं स्पेंड करता हूँ, मैं तो अपने तौर पे सच्ची बात है ये सोचता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात इंसान से बेटे नेकी कराता है, तो उसमें ये भी एक नेकी शामिल है, आप किसी को टीच करें। तो मेरा तो ये अपनी नीयत होती है कि ये इबादत है, अल्लाह ताला की ज़ात हो सकता है इसी सिलसिले में हमें को बख्श दे कि हमने भी तेरे जो ये बंदे हैं उनको कोशिश की है, जो कुछ हमें आता था उनके साथ शेयर करने की और उनको टीच करने की। और इवन मैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी क्लास में करता था उधर, जिसमें मैं ये चाहता हूँ आप लोगों की कैरेक्टर बिल्डिंग हो, ताकि बेटे आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो वहाँ पे आप रिफ्लेक्ट हों। इंसान बेटे अपने कैरेक्टर से रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है बेटे? अब मैम इसको बेटे स्टॉप कर देते हैं रिकॉर्डिंग को। तो